السلام علیکم۔ میمونہ MMPS میں آپ کا دل استقبال کرتے ہیں۔ چلیے آج جماعت ششم کی مضمون جنرل سائنس کا سبق روشنی اور سایہ آپ کے سامنے اس کا ویڈیو پیش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں مختصر انداز میں سبق کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیے بچوں، آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر 14 روشنی اور سایہ ہے۔ یہاں پہلا پوائنٹ ہم کیا دیکھیں گے؟ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 97 پر آپ ٹیکسٹ بک اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں پہلا پوائنٹ ہے، بتائیے تو بھلا کیا گہری تاریکی میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہے؟ بالکل نظر نہیں آتی ہے۔ اور جو اطراف کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے تو وہ کس وجہ سے نظر آتی ہے؟ ہمیں روشنی کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ یعنی جن چیزوں یا اشیاء سے روشنی خارج ہوتی ہے وہ بذات خود روشنی کا مرکز یا منبع ہوتی ہے، اور وہ روشن شے ہوتی ہے، روشن چیز ہوتی ہے۔ اب سب سے اہم بات، قدرتی منبع کیا ہے؟ سورج روشنی کا سب سے اہم قدرتی منبع ہے۔ رات میں سورج نظر آتا ہے کہ بچوں؟ نظر نہیں آتا ہے، روشنی بھی نظر نہیں آتی، لیکن رات میں نظر آنے والے ستارے، جگنو وغیرہ کیا ہے؟ روشنی کے قدرتی منبع ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر آپ کو صفحہ نمبر 97 پہ 14.1 میں روشنی کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ لائٹ سے، موم بتی سے، دن میں سورج کی وجہ سے، اور رات میں جگنو کی وجہ سے بھی۔ جگنو جب جھلمل کرتے نظر آتے تو ان سے روشنی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ دراصل اب ہم دیکھیں گے روشنی کی اشاعت۔ کئی مرتبہ دوپہر کے وقت آپ نے کھڑکی یا دروازے کے شگاف میں آپ نے دروازے میں تھوڑی سی چیر رکھے تو اس وقت دھوپ کی ایسی روشنی ہمارے گھر میں آتی ہوئی نظر آتی ہے، جیسا کہ 14.2 کھڑکی سے اندر آتی ہوئی روشنی کی تصویر آپ کو بتائی گئی ہے۔ کئی مرتبہ دوپہر کے وقت آپ نے کھڑکی یا دروازے کے سوراخ میں سے یہ چھوٹی سی چیر ہے اس میں اندر آنے والی روشنی دیکھی ہے، یا کسی کا ٹین کا گھر ہے تو ٹین میں اگر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہے تو زمین کی جانب وہ روشنی آتی ہے، تو اس کے راستے میں موجود ہمیں کیا ہے؟ گرد کے، دھول کے ذرات واضح طور پر نظر آتے ہیں، اور ان ذرات کی وجہ سے ہمیں روشنی کا راستہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روشنی سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے۔ روشنی کیسے لکیر میں سفر کرتی ہے؟ سیدھی لکیر میں۔ یہی چیز جو ہے تو روشنی کی اشاعت ہے۔ اب روشنی کی اشاعت میں ہم آپ کو ایک تجربہ بتائیں گے، آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ آئیے عمل کر کے دیکھیں میں صفحہ نمبر 97 پہ 97 پہ آپ کو ایک تجربہ ہے۔ یہاں پہ مخوے کی 3 دفتیاں لی گئی، 3 پٹھے لیے گئے ہیں، اس کے اوپر بیچوں بیچ ایک ہی سیدھ میں سوراخ کیا گیا ہے اور انہیں ترتیب سے رکھا گیا ہے جس طریقے سے عمل 1 میں بتایا گیا ہے۔ عمل 1 میں موم بتی ایک سائیڈ میں رکھی گئی اور ہم یہاں ایک ہی سیدھ میں سوراخوں کو رکھ کر موم بتی روشن کرتے ہیں۔ موم بتی کی لو ہمیں نظر آتی ہے، یعنی کیوں نظر آ رہی؟ وہ ایک ہی سیدھ میں ہونے کی وجہ سے ہم نے مخوے کی پٹیاں اس طریقے سے رکھے کہ سوراخ ایک سیدھ میں رہے، اور دفتی کی ایک جانب ہم نے کیا لگایا؟ موم بتی کھڑی کی، دوسری جانب سے ہم نے دفتی کے سوراخ سے موم بتی کی لو دیکھے تو ہمیں روشنی نظر آتی۔ اگر ہم نے عمل 2 میں اب کوئی ایک دفتی بھی ہم نے کسی قدر ہٹا دیے، ہلا دیے، تو ہمیں روشنی موم بتی کی لو نظر آئے گی کہ نہیں نظر آئے گی؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ روشنی کی اشاعت خط مستقیم میں، یعنی ایک ہی سیدھ میں لکیر میں ہوتی ہے۔ اب دوسرا تجربہ ہے، یہاں پر ایک بچہ کیا کر رہا ہے؟ ایک نلی لے رہا ہے اور سیدھی لیکن آسانی سے مڑنے والی نلی بھی ہے وہ تو، لیکن موم بتی نلی میں سے دیکھ رہا ہے تو سیدھا دیکھنے پہ ہمیں موم بتی کی روشنی فوراً نظر آ رہی ہے۔ دوسرے عمل میں اگر وہ بچہ نلی کو تھوڑا موڑ دیتا ہے تو موڑ کی وجہ سے جو ہے تو ہمیں موم بتی کی لو نظر نہیں آتی ہے۔ یہ دو تجربے کی بنا پہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ روشنی کے سیدھے راستے پر سفر کرنے کو ہی خط مستقیم میں روشنی کی اشاعت کہتے ہیں۔ سوال آپ کو آ سکتا، روشنی کی اشاعت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کیا واضح بولیں گے جواب؟ روشنی کے سیدھے راستے پر سفر کرنے کو ہی خط مستقیم میں روشنی کی اشاعت کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے دوسری آخری بات میں سے آپ کو یہ بات سمجھنا ہے، انعکاس نور۔ اس سبق میں 3-4 چیزیں آپ کو اہم سمجھنا ہے۔ روشنی کا منبع، دوسرا پوائنٹ ہے روشنی کی اشاعت، تیسرا پوائنٹ ہے انعکاس نور۔
इनेकास नूर यानी हमें चीज़ें क्यों कर नज़र आती है, हमें अगर कोई चीज़ है तो क्यों नज़र आ रही है हमें। मुंबई नूर से शय पर पड़ने वाली, देखिए हमारी तारीफ सुनिए। मुंबई नूर से शय पे पड़ने वाली रोशनी की शुआएं शय की सतह से टकराकर वापस पलटती है, यानी सूरज से जो निकली शुआएं वो शय की सतह पर टकराकर वापस पलट जाती है, तो उसे इनेकास नूर कहते हैं। मुनक्किस शुआएं और हमारी आँखों तक पहुँचती है और जिसकी वजह से हमें शय नज़र आती है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है मुंबई नूर से शय पे पड़ने वाली रोशनी की शुआएं शय की सतह से टकराकर वापस पलटती है, इसे इनेकास नूर कहते हैं। मुनक्किस शुआएं हमारी आँखों तक पहुँचने पर हमें शय नज़र आती है। समझ में आ गया। ये लाइट की मिसाल दी गई यहाँ पर, लाइट रोशनी का मंबा बताया गया, वो शय पे पड़ा, वो डब्बा बॉक्स पर, और वो बॉक्स से पड़ के हमारे पास क्या होगा, वो वापस पलटती है और हमें दिखाई देती। मुनक्किस शुआएं की वजह से हमें शय नज़र आती है। क्या आप जानते हैं सूरज एक सितारा है, ये 5वीं जमात में पढ़ चुके। सितारे खुद चमकते हैं, सैयारे ज़ैली सैयारे दूसरों की रोशनी से रोशन होते हैं। सूरज की रोशनी चाँद की सतह से मुनक्कस होकर हमें पहुंचती है, इसीलिए हमें चाँद नज़र आता है। इस रोशनी को हम चांदनी कहते हैं। चांदनी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। इनेकास नूर के बाद हम अक्साला या सकबाला, जिसे पिन होल कैमरा कहा जाता है। पिन होल कैमरा दरअसल होता क्या है, इसके बहुत से तरीक़े पिन होल कैमरा बनाने के मोबाइल पर दिए गए हैं। ये यहाँ पर एक सादा बैडमिंटन के शटल का एक डब्बा लिया गया, इसकी एक जानिब का ढक्कन निकालकर वहाँ पर सफ़ेद पतला कागज़ लगाया गया, दूसरी जानिब के ढक्कन में सुराख किया गया बारीक पिन की मदद से। कुछ फासले पर, यहाँ तस्वीर में बताए गए तरीक़े के मुताबिक कुछ फासले पर यहाँ पर एक मोमबत्ती रखी गई और जलती हुई मोमबत्ती इस तरह रखे कि इसकी लू जो है इसकी लू क्या हो रही है, सुराख के बिल्कुल सामने रहे। अब आपको दूसरे सिरे पर लगे हुए पतले कागज़ पर लू का अक्स जो है तो उल्टा नज़र आएगा। ये जो है तो पिन होल कैमरे की खासियत है। यहाँ पर आपको सफ़ा नंबर 100 पर दरसी किताब में बताया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास शफ़ाफ़, गैर शफ़ाफ़ और नीम शफ़ाफ़। खिड़कियों में लगे शीशों की किस्मों के लिहाज से, अगर खिड़की आपकी पूरी ऊँट की लकड़ी की है तो उसमें से हमें चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आती है, तो वो क्या हो गई, गैर शफ़ाफ़, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। अगर ट्रांसपेरेंट रहा और बिल्कुल साफ़ वाज़ेह तौर से नज़र आ रही है तो वो शफ़ाफ़ चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें धुंधली धुंधली नज़र आ रही है तो वो क्या है, गैर शफ़ाफ़, नीम शफ़ाफ़ और शफ़ाफ़। धुंधली नज़र आ रही है तो नीम शफ़ाफ़, थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, थोड़ा दिख रहा थोड़ा नहीं। नीम शफ़ाफ़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है गैर शफ़ाफ़, और वाज़ेह नज़र आ रहा है शफ़ाफ़। इस तरीक़े से यहाँ बताइए तो भला में खिड़कियों में लगे शीशों की किस्मों के लिहाज से हमें बाहर की चीज़ें नज़र आती है। शीशे का टुकड़ा, मोम लगा कागज़, रंगीन शीशा, ये तमाम चीज़ों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, शफ़ाफ़ चीज़ें, गैर शफ़ाफ़ चीज़ें और नीम शफ़ाफ़ चीज़ें। इसके बाद हम देखेंगे किसे कहते हैं शफ़ाफ़ चीज़ें, कहते किसे हैं। जिस शय से रोशनी मुकम्मल तौर से गुज़रती है वो शफ़ाफ़ शय कहलाती है। वाज़ेह तौर पर ये बात समझ में आ गई होंगी आपको। जिस शय से रोशनी मुकम्मल तौर से गुज़रती है वो शफ़ाफ़ शय कहलाती है। जिस शय से रोशनी नहीं गुज़रती इसे गैर शफ़ाफ़ शय कहते हैं, और जिस शय से रोशनी की कुछ मकदार गुज़रती है वो नीम शफ़ाफ़ शय कहलाती है। इसके बाद हमें दरअसल देखना है साए का बनना। साया कैसा बनता है, देखिए आपका एक दोस्त है खड़ा सामने, या आपका भाई बहन है, इसके ऊपर आपने टॉर्च की मदद से रोशनी चमकाई तो असल में रोशनी जो है तो ख़त मुस्तक़िम में सफ़र करती है, हमने आपको बता दिए। तो वो टॉर्च की जो रोशनी पड़ने वाली थी दूसरी सतह पर, तो बीच में कौन आ गए, आपकी दोस्त भाई बहन। तो इस वजह से वो रोशनी किसके ऊपर पड़ गई, आपकी दोस्त या भाई बहन के ऊपर पड़ गई। तो वो रोशनी पड़ने की वजह से वो बच्ची का या बच्चे का जो भी छाँव रहती वो दूसरी सतह पर नज़र आती। दरअसल हम उसे ही क्या कहते हैं,
साया कहते हैं। यहाँ पे आपको साए की तारीफ बताई गई। रोशनी की शुआओं के रास्ते में गैर शफाफ शय, यहाँ गैर शफाफ शय कौन थी? आपकी दोस्त, भाई, बहन थी। हो तो इसमें से रोशनी नहीं गुजरती है, इसीलिए शय की दूसरी जानिब या दीवार या किसी दूसरे सतह पर शय की छांव पड़ती है, इसे इस शय का साया कहा जाता है। आइए बच्चों, अब सबक हमारा इख्तिताम के करीब है। लास्ट पॉइंट क्या देखेंगे? हमने अभी तक सबक में सीखा क्या है? हमने सीखा है रोशनी का मंबा, यानी रोशनी खारिज करने वाली शय, रोशनी खारिज करने वाले जो ज़रिए हैं। कुदरती मंबा क्या देखे? सूरज की रोशनी, सितारे, जुगनू। और मसनूई मंबे क्या देख रहे हैं हमने? खंदील, मोमबत्ती, बिजली का बल्ब वगैरह रोशनी के मसनूई मंबे हैं। अब किसी भी शय को देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इन्इकास नूर की ज़रूरत होती है। और रोशनी ख़त मुस्तक़ीम में सफ़र करती है। जब कोई शय रोशनी के रास्ते में आ जाए तो उसकी मदद से क्या होता है? गैर शफाफ शय रोशनी के रास्ते में आ जाए तो उसकी छाँव यानी साया बनता है। और सूरज की सफ़ेद रोशनी में छुपे हुए 7 रंग होते हैं जो हमें धनक में वाज़ेह और अच्छी तरीके से नज़र आते हैं। प्यारे बच्चों, ये सबक आपको मुख्तसर तौर पर समझाने की कोशिश की गई है। आप अपनी दरसी किताब में से इस सबक को देखकर 2-3 मरतबा रीडिंग कीजिए। खुद सवालात जवाबात लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको सवालात जवाबात पेश किया जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।